Hello guys, and welcome back to Equi Edge Research, where we share cutting edge insights for you across equity markets, overall economy, and we try to decode some stock market psychologies for us. Hello guys, I am the student of Parth Verma sir, the valuation school चलाते हैं, and whatever I learned is what I have learned from him, and that is what we are practicing and applying and trying to understand the risk factors. So, guys, today we are here to understand the risk factors of our company, that is Power Mech Projects Limited, and we are intact with the growth story of India towards power capacity expansion. And India has successfully achieved the split of 50-50 in terms of fossil and non-fossil based fuels. Currently, fossil stands at 245 gigawatts, and non-fossil based stands at something like 238 or 240, which is near at par at 50-50% split. And we are with an ambitious target of achieving 1000 gigawatts, which includes both fossil and non-fossil based. We have a short goals till 2032, and we are looking forward to maximize and improve the base load capacities till 2047, which eventually makes India's century for independence. And that is what we are. So we are intact with the power story, and we are going to understand what are the potential risk factors in businesses such as Power Mech. If I give a little or short introduction about Power Mech, it works in EPC segment, that is engineering, procurement, and commissioning. Also, it does uh, ETC works, that is erecting, testing, and commissioning works. In terms of BTG, that is boiler, uh, transistors, and generators, right? Boilers, turbines, and generators. So, also the company is in the business of mine developments and operation and maintenance, mechanical works, balance of plants, etc. So we are going to understand what are the potential risk factors in companies like this. So I have all of them in written format. I have my own notes. You can refer the DRHP, draft red hearing prospectus of Power Mech, that you can get it from the screener itself, or you can directly have a Google search. The first risk that we talk about is that we may not be able to qualify for complete and win projects, which could adversely affect from business, which will adversely affect our business, and result will be shown in the operations, or we will see the results in the operations. मतलब कंपनी ये कह रही है कि ऐसा रिस्क है, कि ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हम जो टेंडर्स आएंगे उसके लिए प्री क्वालिफाई ना कर पाए, जिसकी वजह से हमें ऑर्डर्स ना मिले, जिसकी वजह से हमारे ऑपरेशंस में दिक्कत आएगी, एंड विच विल इवेंचुअली लीड टू डिक्रीज इन द कैश इनफ्लोज इन द कंपनी, जो कि कंपनी के वर्किंग कैपिटल को भी बहुत ज़्यादा हिट करेगी. बट अगर आपके पास पहले से ही नए ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल तो हिट करेगा, लेकिन कैश फ्लो हिट करेगा. तो डेफिनेटली in near sooner terms, for the company like Power Mech, which is handling a subcontract basis of laborers at 18,000 numbers, will definitely move towards bankruptcy. So that is one risk in the company. The second, the order book does not record future revenue, and actual income may be significantly less than the estimates reflected in our order books, which could adversely affect our result of operations. इसका मतलब क्या, कि जो हमारी ऑर्डर बुक है उसके अंदर हम फ्यूचर रेवेन्यूज को नहीं बता रहे हैं. These are the estimates, and estimates may be wrong. So for the investors who are making their investments based on the massive order book, they have to be little careful, because it does not mean कि अगर आपके पास 10,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है, that means that 10,000 crore rupees are going to be inflow, या फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश मैन दैट विल बी इनफ्लोड इन द कंपनी. ये जरूरी नहीं. तो आप सिर्फ इस बेसिस पे अपना डिसीजन नहीं बना सकते. ऑर्डर बुक्स फ्यूचर रेवेन्यू की कोई गारंटी नहीं दे रहा, राइट? ऑर्डर बुक है, लेकिन क्या ऑर्डर बुक फ्यूचर रेवेन्यूज की गारंटी देता है? बिल्कुल नहीं देता है. दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ वर्क. दैट इज, द ऑर्डर बुक इज नॉट इक्वल टू द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट? इतनी बात समझ आई. द नेक्स्ट थिंग, these order books includes work that is pending and not started, signed and agreemented contracts,
as well as letter of intent और letter of award, no final agreement। मतलब इसके अंदर 3 से 4 चीजें आती है। पहला क्या, जो काम पेंडिंग है आपकी कंपनी के अंदर। दूसरा, जो साइंड और एग्रीमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है, बराबर। और तीसरा कौन सा, कि जो लेटर ऑफ इंटेंट है, लेटर ऑफ अग्रीमेंट है। तो कोई फाइनल अग्रीमेंट नहीं आया है, राइट। लेटर ऑफ इंटेंट है कि ऐसा हो सकता है कि शायद हम आपकी कंपनी को ऑर्डर दे दे, तो इसको भी कंपनी अपनी ऑर्डर बुक में लिखता है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमारी ऑर्डर बुक में हम वो बाइफर्केशन करें कि कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि सही में हमारे लेटर ऑफ अग्रीमेंट जिनका मिला हुआ है, और कौन से ऐसे हैं जो लेटर ऑफ इंटेंट है कि जो मिलने की पॉसिबिलिटीज है। इनमें बाइफर्केशन होने के बाद हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन शायद हम बना सकें। द नेक्स्ट वन इज the process of company to calculate the order book is not uniform, and therefore for the order book of every company is subjective in nature and may vary from company to company। मतलब ये है कि जो ऑर्डर बुक कैलकुलेट करने का तरीका है वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। मतलब आप ऐसा समझिए जैसे पावर मैक है और 2-3 कंपनीज है इसी सेक्टर में, वो सब भी ऑर्डर बुक बना रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे सब ऑर्डर बुक का कैलकुलेशन करते हैं वैसे सारी कंपनीज यूनिफॉर्मली करें। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हर कंपनी का अपना एक अलग तरीका होता है। सो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, दिस इज सब्जेक्टिव। सो सम पीपल मे बी अग्रेसिव, some may be defensive। that is Power Max order book is totally different from maybe KPIL जो कि इंडस्ट्री में है, सिम्बी और KPI, LVS, LNT सबसे अलग हो सकता है। that is very important। next, suspended projects are also included in the order book। जो प्रोजेक्ट सस्पेंड हुए हैं उनको भी ऑर्डर बुक में हमने इंक्लूड किया है। प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑन होल्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब जो ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि शायद कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर वहाँ की जो लोकल पब्लिक है उन्होंने कोई धरना दे दिया हो, या फिर पहले कोई ऐसी घटना घट गई हो जिसकी वजह से वो जो ऑपरेशन वो चल रहे हैं, शायद कोई इलीगल एक्टिविटी हो गई हो जिसकी वजह से वो जगह जो है वो बंद हो गई है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, दीज आर नॉट द कंपनीज फॉल्ट। तो रिस्क दैट विल वर्क और इट विल नॉट वर्क, और या फिर यहाँ पर आगे जाकर एग्जीक्यूशन होगा इज नॉट श्योर। एट द सेम टाइम पैसा आएगा या नहीं आएगा यहाँ से, दैट इज ऑल्सो नॉट श्योर। लेकिन कंपनी बोल रही है कि ये जो सस्पेंडेड प्रोजेक्ट्स है इसमें से भी यील्ड्स पास्ट में जनरेट हुई है, बट इसके जो रेवेन्यूज हैं दे आर अनप्रेडिक्टेबल, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज ऑर्डर बुक रिप्रेजेंट्स रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड नॉट अश्योर्ड रेवेन्यू, सब्जेक्ट टू एग्जीक्यूशन, सर्टिफिकेशन एंड कस्टमर रिलेटेड रिस्क। मतलब ऑर्डर बुक आपको रेवेन्यू की विजिबिलिटी दे सकता है, रेवेन्यू का प्रेडिक्टेबिलिटी दे सकता है, लेकिन क्या वो आपको इस बात का, या फिर हम कह सकते हैं कि कस्टमर, क्या वो आपको एक्यूरेसी दे सकता है क्या कि इतना रेवेन्यू आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि हमने पहले बात करी, क्योंकि सब्जेक्टिव है, हमें नहीं पता कंपनी डिफेंसिव है ऑफेंसिव है, उसका मेथड ऑफ कैलकुलेशन फॉर ऑर्डर बुक क्या है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। देयर आर रिस्क रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसिफिकली मिलते हैं, जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है, जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं दे आर नॉट स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स, रादर दे आर बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। जैसे 680 मेगावाट का प्लांट हो गया, सो 680 मेगावाट ऑफ प्लांट इज अ वेरी बिग प्लांट। 2-3 सिटीज का, जो छोटी सिटीज है वहाँ का जो पावर है उसको सप्लाई कर सकता है इतना प्लांट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी कि इतना बड़ा प्लांट है तो उसको आप में क्या एग्जीक्यूशन करने की कैपेबिलिटीज है। तो कंपनी यही बोल रही है कि आवर इनएबिलिटी इन एग्जीक्यूशन ऑफ दीज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस, जो कंपनी कहना चाह रही है। बिग प्रोजेक्ट्स having big relative sizes may have additional cost overruns and will negatively affect our operating margin। क्या कहा कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स है ना, इसके अंदर जो कॉस्ट है ना वो बहुत बार ओवररन हो जाती है।
कैसा होता है, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनके टेंडर्स निकलते हैं। मेजोरिटी कुछ जो होते हैं वो गवर्नमेंट साइड होते हैं, कुछ होते हैं प्राइवेट साइड। तो दोनों जो एंटिटीज है ना, ये टेंडर बेस्ड अप्रोच रखती हैं और टेंडर बेस्ड काम देती हैं। अब इसमें क्या होता है, जो प्राइस होता है दैट इज लॉक्ड अर्लियर इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो बहुत बार क्या होता है कि कॉस्ट ओवररन की वजह से, या फिर इतने मैसिव जगह है यहाँ पर, कई बार एस्टिमेट से ज्यादा एम्प्लॉइज या लेबर्स को ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या कॉस्ट बढ़ जाती है। डेफिनेटली जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, तो क्या हमारा एबिडा कम होने लगता है, डेफिनेटली हमारा एबिडा कम होने लगता है। तो क्या हमारा कैश ऑपरेटिंग मार्जिन कम होगा, डेफिनेटली हमारा कैश ऑपरेटिंग मार्जिन कम होगा, राइट। और हमारे ये देखो, जो इंजीनियरिंग कंपनीज है इसके अंदर मेजरली कौन सी एक्सपेंसेस है, एक तो एम्प्लॉय एक्सपेंस है, दूसरा है कौन सी चीज पे केपेक्स करोगे। तो इंजीनियरिंग कंपनी है तो आपको नो हाउ में इन्वेस्ट करना है, आप नई इक्विपमेंट्स के साथ आओगे, आप नए हैवी एसेट्स के साथ। जैसे कंपनी इज ऑल्सो इनटू लॉजिस्टिक्स ऑफ टेकिंग ऑफ कोल टू द नियर बाय रेलवे साइडिंग्स, तो इट नीड्स मैसिव हैवी इक्विपमेंट्स, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। जैसे पावर मैक के पास 200 से लेकर के आई गेस 281 से 300 के बीच में जो नंबर है उतनी क्रेन्स है। सो द कंपनी इज ऑल्सो असेट हैवी, so that is also very much important and a point of concern. And company contract portfolio will remain concentrated, and these are the possibilities. क्या होता है, अगला लेते हैं कि company contract portfolio will remain concentrated and there are possibilities that इनमें से कोई एक, जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की बात करी कि कोई एक मैन्युफैक्चरर है, बड़ा मैन्युफैक्चरर है, B2B मैन्युफैक्चरर है, और उसके पास 5 कस्टमर्स है, लेकिन 5 बहुत बड़े कस्टमर्स हैं, राइट। अब वो जो 5 बहुत बड़े कस्टमर्स है, जो कि ऐसा समझिए मैक्सिमम रेवेन्यू हमारी कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जनरेट करके देता है, उनमें से एक भी कंपनी अगर साइडलाइंस पे चली जाती है या फिर हमारे साथ जो डील हुआ है उसको ब्लॉक कर देती है या हमें बैन कर देती है, तो डेफिनेटली हमारे रेवेन्यूज जो है वो स्टीप फॉल दिखाएंगे, उन पर हिट आएगा। We are exposed to time and cost overruns on our lump sum price and item rate contracts, resulting in reduced profits or losses। कि हम एक्सपोज है टाइम और कॉस्ट ओवररन से। क्या होता है कई बार कि आप इसको ऐसे समझिए कि फॉर सपोज अगर नितिन गडकरी जी ने 1 लाख रुपए का केपेक्स अनाउंस कर दिया फॉर मेकिंग अ हाईवे, अब वो नहीं, वो बहुत ज्यादा ये हो गया, चलो आप समझिए 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने डाले। अब उस प्रोजेक्ट को खत्म होने का जो टेन्योर था 1 साल का था, ऐसा ही कुछ पकड़िए आप, 1 साल का था, बहुत बड़ा लंबा हाईवे था, लेकिन अब उसको 2 साल होने वाले, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। क्या लेबर्स को पर डे कॉस्ट बढ़ गया? डेफिनेटली बढ़ गया। क्या आपके रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया? पिछले साल से इन्फ्लेशन हुआ ना, तो क्या वो बढ़ गया? डेफिनेटली बढ़ गया। तो क्या इसकी वजह से गवर्नमेंट को ओवर स्पेंडिंग करना पड़ा क्या? तो क्या ये टाइम ओवररन की वजह से ओवर स्पेंडिंग करना पड़ा? डेफिनेटली। तो क्या हमारी कंपनी को भी क्या टाइम ओवररन की वजह से ओवर स्पेंडिंग करना पड़े? क्योंकि कंपनी देखो सिविल वर्क्स में भी है, जिसके अंदर कंपनी का रॉ मटेरियल है सीमेंट एंड स्टील, सो द कंपनी इज हेवीली एक्सपोज टू सीमेंट एंड स्टील कमोडिटी प्राइसेस, राइट। तो वो भी क्या एक हमारा मार्जिन कट कर सकता है, वो भी मार्जिन कट कर सकता है। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। And we need to understand there are contract types. Some of them are cost reimbursable contract, कि जितना खर्चा होगा उतना क्लाइंट भरेगा। अब इसमें जो टाइम ओवररन है ये क्लाइंट साइड का रिस्क है, और जो कॉस्ट ओवररन है उसमें कंपनी सेफ है, मार्जिन प्रिडिक्टेबल है, और डीजल प्राइसेस अगर हाई हो जाएंगे तो क्लाइंट पे करेगा, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ONM जो है वो आपको लमसम प्लस आइटम रेट प्रोवाइड करेगा। मतलब क्या कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया तो आपने जितना जितना खर्चा किया, तो आपके खर्चे के बेसिस पे आपने जितना काम किया उस बेसिस पे आपको धीरे धीरे पैसा आता रहेगा। एट द सेम टाइम अगर आपको किसी चीज में महंगाई आ गई, फॉर सपोज आपने जैसे वो लॉजिस्टिक्स का काम किया कि आप कोल माइन से लेकर के रेलवे साइडिंग तक जो लॉजिस्टिक्स कोल को लॉजिस्टिक्स से रेलवे साइडिंग्स तक आप ले जा रहे हो, जो लॉजिस्टिक्स की सर्विस दे रहे हो, उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर डीजल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्या वो कंपनी बेयर करेगी? डेफिनेटली वो कंपनी बेयर करेगी। फिर होता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है कि काम 100 रुपए का, तो 100 रुपए में ही होना चाहिए,
उसके बाद आप उसके और या फिर अपने जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया उससे आगे नहीं मांग सकता। अगर कॉस्ट बढ़ गया तो कंपनी सफ़र करेगी, टाइम बढ़ गया तो कंपनी सफ़र करेगी। तो दिस इज़ अ रिस्की टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लाइंट फिक्स प्राइस देता है और कंपनी फुल रिस्क से एक्सपोज होती है। दीज आर द टाइप्स ऑफ लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जनरली होते हैं इरेक्शन वर्क्स में, गैस और स्टीम टरबाइन में हाई एग्जीक्यूशन रिस्क होता है। और जो हमने पहले कॉस्ट रीइंबर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करी थी, ये आता है O&M में, क्योंकि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर लॉजिस्टिक्स भी आएगा, तो ये हो जाता है। और जो तीसरा है वो दैट इज आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सी इंडस्ट्री में? ये O&M में भी होती है, माइन डेवलपमेंट में भी होती है। इसका मतलब क्या कि पर यूनिट काम के पैसे लॉक्ड है। मतलब फॉर सपोज अगर हमने माइन डेवलपमेंट की बात करी और हमने बात करी किसी कोल माइन की, जो कि कंपनी ने रिसेंटली कोल माइनिंग ऑर्डर्स लिए हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ कोल, फॉर एग्जांपल 1 मेट्रिक टन का कोल अगर मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं तो वो यूनिट हो गया, तो उस यूनिट का मेरे को XYZ अमाउंट ऑफ पैसा मिलेगा। दैट इज द थिंग। मतलब इसमें कैसा मॉडल होता है कि हमारी जो कंपनी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी और कंपनी को कोल निकालने का राइट मिलेगा। क्या होता है कि जो बड़ी कोल माइनिंग या फिर बड़े कोल की जो एरियाज होते हैं जिनके पास उनका लाइसेंस होता है, वो बोलते हैं यार मैं खुद केपेक्स क्यों करूं, मेरे को तो बेचना है। तो वो ऐसे सब कॉन्ट्रैक्ट्स देती है कंपनीज को। तो कंपनी खुद के पैसों से केपेक्स करती है, बदले में कंपनी को रिटर्न में ये अवार्ड मिलता है कि आप यहाँ से कोल माइन कर सकते हैं, और वो कोल माइन करके ओरिजिनल कंपनी को दे देते हैं, और जितना एक्सट्रैक्शन करते हैं उस बेसिस पे उस यूनिट के ऊपर जो भी उनका मेट्रिक डिसाइडेड होता है, उतना पैसा जो है कंपनी हमारी कंपनी को देती है। इसमें कैसा होता है कि अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, कि आपने नंबर ऑफ मेट्रिक टन्स बढ़ा दिए, कि वॉल्यूम बढ़ा दिया, कि जितना आपने कोल एक्सट्रैक्ट किया उतना आपका जो रेवेन्यू है बढ़ता है। इसमें रेट हमेशा पहले से फिक्स होता है, तो कॉस्ट रिस्क डेफिनेटली होता है। एंड एक AMCs भी होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें कैसा होता है कि ये माइनिंग एंड डेवलपमेंट जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स और बैलेंस ऑफ प्लांट प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। मतलब बॉयलर, टर्बाइंस और जनरेटर्स को छोड़ करके जितने सारे काम है दैट कम्स इन BOP। तो ये जो मेंटेनेंस चार्जेस है दैट इज आस्क्ड और एक्सपेक्टेड फॉर दैट। सो द नेक्स्ट रिस्क इज द एस्टिमेशन रिस्क। मतलब क्या कि पहले समझो कि कंपनी का ऑपरेटिंग खर्चा क्या है, व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इक्विपमेंट का खर्चा है, इंजीनियरिंग कंपनी है इसलिए। मटेरियल का, रॉ मटेरियल का खर्चा है, कौन से रॉ मटेरियल, सीमेंट और स्टील। फ्यूल का खर्चा है, डीजल, पेट्रोल। सब कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट है, जो सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको भी एक कॉस्टिंग होती है, वो कॉस्ट है। दीज आर आर मेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो इफ मैनेजमेंट फेल्स to take into consideration about the accurate cost, it will face capital loss। मतलब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले क्या मैनेजमेंट में ये कुवत है कि वो जो कॉस्ट उसको लग सकती है उसको एस्टिमेट करे। दैट शुड बी नियरली 70-60-70-80% ऑफ अप्रोक्सीमेशन प्रेसिजन, कि भाई अगर 100 रुपया लगना है तो हमको रफली इतना पता है यार, 100-110 रुपया लगेगा, 80-90 रुपये लगेगा, 90-95 रुपये लगेगा। क्या ये एस्टिमेशन की कुवत कंपनी के पास है? क्योंकि अगर ये नहीं रही और हमने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए छोटा टेंडर डाला तो क्या हमें कैपिटल लॉस होगा? डेफिनेटली होगा। ऐसे समझो यार, हमने 50 लाख रुपए का ना एक स्टार्टअप के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस बनाना है, हमने लमसम कॉन्ट्रैक्ट लिया। हमने पहले बात करी लमसम कॉन्ट्रैक्ट पे। लमसम एक प्राइस पॉइंट पे प्रोजेक्ट फिक्स, तब वो फिक्स कर दिया प्राइस। तब जब प्राइस फिक्स किया, अब क्या हुआ कि आपने कुछ चीजें एस्टिमेशन में नहीं ली। आपने सीमेंट की हायर सीमेंट कॉस्ट को एस्टिमेशन में ले लिया, हर साल इन्फ्लेट हो जाता है। स्टील के प्राइसेस को नहीं लिया, लेबर के चार्जेस बढ़ते हैं वो आपने उसमें इंक्लूड नहीं करे। कॉस्ट ओवररन्स का एस्टिमेशन आपने नहीं लगाया। आपने बारिश का अंदाजा नहीं लगाया कौन से इसमें हो रहा है, आपने शुरू कर दिया अप्रैल मई में करना कंस्ट्रक्शन। तो क्या ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि अब क्या होगा, अब आप कॉस्ट को, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो आप आपके जिसने आप कॉन्ट्रैक्ट दिया उससे आप वापस ले नहीं सकते। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए क्या आपको खुद का पैसा झोंकना पड़ेगा? क्या डेफिनेटली झोंकना पड़ेगा। क्या वो लॉस हुआ क्या हमारा? यस, दैट इज अ कैपिटल लॉस। अगर आप प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगे देन यू विल हैव अ रेपुटेशन लॉस व्हिच इज अ फार मोर बिग लॉस देन अ कैपिटल लॉस। That is also very much important. So also
unanticipated increase in cost of equipment, materials and manpower, and delay in delivery of equipment and materials to project site. These are the risk कि अगर डिले हो जाता है, देखो डिले होना ना ऐसे प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि लेबर को तो आपको पर डे के हिसाब से पैसा देना है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। आपने टाइम लगाया, आपने जो चीज़ 1 महीने में ख़त्म होनी थी, अब वो 2 महीने के बाद आप उस स्टेज पर पहुंचे, अब आपको सीमेंट की ज़रूरत है। क्या हो अगर सीमेंट की कमोडिटी प्राइस उस टाइम पे लाइफ टाइम हाई पे हो, आपका कैपिटल तो ठुक जाएगा ना। तो ये अनएंटिसिपेशन, इस पे क्या हेजिंग करेगी कंपनी? उसको करना चाहिए, उसको जो कुछ भी करना पड़े फॉर रिड्यूसिंग इट्स कैपिटल लॉस, वो करना चाहिए कंपनी को। वर्किंग कैपिटल रिलेटेड रिस्क इन द कंपनी, कंपनी के वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड रिस्क क्या है? हमें धंधा चलाने को ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, वर्किंग कैपिटल चाहिए। आपको डेली बेसिस पे अपने लेबर्स को सैलरी देना है, आपको डेली बेसिस पे कोई नया प्रोजेक्ट आपने लिया उस पर केपेक्स भी करना है, आपको डेली बेसिस के ऊपर अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करना है, और अपना मेंटेनेंस केपेक्स के साथ आपको थोड़ा थोड़ा ग्रोथ केपेक्स भी करना है, राइट। हमें धंधा चलाने को बड़ा, धंधे में पहले पैसा खर्च होगा फिर पैसा आएगा, ये मॉडल है धंधे का, कि आपको पहले माइनिंग ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने खुद का पैसा लगाया, उसके बाद जब आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल शुरू किया तो पर मेट्रिक टन के ऊपर आपको जो पैसा मिलेगा, लाइक फर्स्ट यू विल डू द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड देन आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द कोल यू विल गेट मनी। क्या ये इस बिजनेस का मॉडल है रफली? हाँ यही है। पावर सेक्टर में भी क्या ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, मोस्टली तो ऐसा ही होता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर डिपेंड भी करता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट लमसम नहीं होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होते कि आपका ये पे करेगा, जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो पे करेगा। तो दैट इज द कंपनी नीड्स टू इन्वेस्ट इट्स ओन मनी फर्स्ट, स्पेशली फॉर ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो ये जो वर्किंग कैपिटल है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन assumptions, and these assumptions might change that results in volatility in number of working capital। मतलब ये जो सारा पैसा लगेगा ना, ये रफली जो हमने, जैसे कि हमारा ऑर्डर बुक रफ था, वैसे ही क्या हमारा एस्टिमेशन रफ होता है? बिल्कुल होता है। वो हमारा अजम्पशन होता है? बिल्कुल अजम्पशन होता है। अब अजम्पशन और एक्चुअल रियलिटी में क्या गैप है? बिल्कुल गैप है। तो क्या जब रियलिटी में हिट करेगा और रियलिटी में हमको एक्स्ट्रा माल चाहिए होगा तो हमें खरीदना पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। तो क्या कॉस्ट ओवररन होएगा? क्या कॉस्ट में, वर्किंग कैपिटल में वॉलेटिलिटी आएगी? डेफिनेटली आएगी। दैट इज द पेमेंट वाज फॉर एग्जांपल अज्यूम्ड इन जैन, लेकिन आपको जुलाई में मिल रहा है। कंपनी तो B2G में भी इन्वॉल्व है ना। अभी कंपनी के साथ इशू चल रहा है, जल जीवन प्रोजेक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देने से मना कर रही है, बोल रहा है ये सेंट्रल का काम है। तो जो जल जीवन मिशन उसका पैसा अटका हुआ है। L&T के कॉन कॉल में आप जाएंगे तो उन्होंने भी ये बात करी हुई है। तो L&T ने तो बोला जैसे जैसे हमारा पैसा आएगा वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी, अगर हमारे पास पैसे की गति धीमी हुई तो हमारी स्पीड धीमी हो जाएगी। They definitely can do that because they are in a power position there, they have a significant moat, क्योंकि उनसे बेहतर, देखो जो ब्रिज, जो पुल, जो डैम L&T ने बनाया वो टूटता नहीं है, जितना बोला है उससे 10-5 साल ज्यादा ही चल जाता है। तो L&T के ऊपर तो the company has a position there. तो that is the thing. So working capital needs plus requirements high, वो कब होता है? जब साइज ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज होता है। साइज ऑफ ऑपरेशंस कब इंक्रीज होता है? जब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्रीज होते हैं। तो ग्रोथ एंड एक्सपांशन इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल नीड्स एंड इंडेटनेस। मतलब क्या कि जब जब मार्केट में डिमांड आएगी फॉर द कंपनी, तब तब क्या साइज ऑफ ऑपरेशंस बढ़ेंगी। जब साइज ऑफ ऑपरेशंस बढ़ेंगे तो क्या नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो क्या रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डेट बढ़ेगा। क्या कंपनी, अगर अभी प्रेजेंट कंडीशन देखो, कंपनी के पास रिजर्व्स है, लेकिन क्या हर रिजर्व वर्किंग कैपिटल का इश्यू कंप्लीट करने के लिए है? नहीं। कैपिटल रिजर्व वो तो स्टॉक होल्डर का पैसा है यार, है ना, वो तो स्टॉक होल्डर का पैसा है ना, जो उसने दिया है, पे किया है आपको।
वो तो स्टैट्यूटरी ये है, वो तो आप सिर्फ स्टैट्यूटरी काम के लिए यूज कर सकते हो। तो हर रिजर्व हर चीज के लिए थोड़ी होता है, हर रिजर्व कैपिटल वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए थोड़ी होता है। तो यार तुम्हारे पास तीन चार तरीके हैं। एक तुम क्यूआईपी कर लो, क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशन ये कर लो, उनको इंस्टीट्यूशंस को इक्विटी नई प्रोड्यूस करके दे दो, या फिर तुम क्या करोगे, डेट लोगे, तुम्हारा डेट बढ़ेगा। दैट इज ऑल्सो थिंग। मतलब इसमें इस इंडस्ट्री में ये पैटर्न है कि जब जब number of projects increases and the number of operating or the size of operation increases, the debt of the company also increases. So the payment are depending upon the completion of phases with reference to its value of work completed. मतलब जो आपने काम है आपका पूरा, उसको फेजेस में डिवाइड करते हैं और आपका पेमेंट ना फेज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको डैम बनाना है और आपने उसको तीन चार फेजेस में डिवाइड किया, तो आपको फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद आपको फर्स्ट फेज का पैसा जो है वो डिस्पर्स कर दिया जाता है। 20% काम करोगे तो आपका 20% बिलिंग होगा, लेकिन ये 20% बिलिंग कब होगा, जब आप और जो सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो दोनों इस बात पर अग्री करेंगे और म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि ये बिल पास करना है या नहीं करना है। 5 to 10% of money is withheld by the client as retention money or security। मतलब क्या कि फॉर सपोज अगर आपको कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो कंपनी फॉर एग्जांपल आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है बीटीजी और ईटीसी का, इरेक्शन टेस्टिंग और कमीशनिंग और बॉयलर्स टर्बाइंस एंड जनरेटर्स को ओवरहॉल करने का, उनका टेस्टिंग करने का। इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके अंदर क्या है कि जो वो पावर सेक्टर के अंदर ये जो बॉयलर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर्स में होते हैं। तो अगर इनको बहुत ज़्यादा हैवी और एक्सट्रीम कंडीशंस में थ्रेशोल्ड तक लेके जाए तो ये लीक कर सकता है, एंड दैट इज हजार्डस फॉर द पीपल हु आर वर्किंग देयर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लीक ना हो जाए, तो कंपनी क्या करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट देती है वो 5 से 10% जो पेमेंट का होता है अपने पास रखती है, और कॉन्ट्रैक्ट के खत्म हो जाने के बाद, काम के खत्म हो जाने के बाद 2 साल तक एडिशनली टेस्ट करती है और उसके बाद पैसा डिसबर्स करती है कि ठीक है आपका काम खत्म हो गया, या फिर आपने जो वारंटी या गारंटी पीरियड दिया है कि यहां तक तो ठीक चल जाएगा, तब तक वो आपसे आपका 5 या 10% अपने पास जो है रखते हैं। The company operates on working capital intensive EPC model, requiring upfront funding for materials and execution, with cash flows linked to milestone based payments and subject to delays and retention deductions। समझा, कंपनी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ईपीसी मॉडल के अंदर काम करती है और इसके कैश फ्लोज ये लिंक्ड है विथ माइलस्टोन ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड। वर्किंग कैपिटल डिले इन रिटेंशन अमाउंट, disbursements or contracts with payment dates and the end of the execution of contract also depend upon financial position of client। ऐसा भी हो सकता है यार कि कभी आपका क्लाइंट, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं, उसने 5 से 10% रखा, वो आपको डिसबर्स ही नहीं कर रहा है, वो आपको बोल रहा है अभी नहीं बाद में, राइट। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि बहुत बार क्या होता है कि जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे आपका पैसा ना बहुत टाइम तक अटकता रहता है, स्पेशली इन B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट वाला जो साइड होता है। सरकार चेंज हो गई, लोकल रेगुलेशंस चेंज हो गए, पब्लिक में हड़कंप मच गया, कोई पब्लिक राइट हो गया, इस सब की वजह से आपका पेमेंट डिले हो जाता है। एग्जीक्यूशन प्लस हजार्ड रिस्क, वी डू नॉट हैव ऑफिस जॉब, कंपनी इज सब्जेक्टेड टू रिस्क of equipment failure, rise of explosion, fire or explosion, and loss of life risk. The safety of our workforce on our client side is company's responsibility, and any discrepancy in the maintenance safety standards may be hazardous to our employee lives। मतलब अगर हमारे जो क्लाइंट की साइट है वहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज़ या हमारे सब कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हुए लेबर्स काम कर रहे हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने हमारे कंप्लायंस में कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखाई, कोई भी चूक हमसे हो जाती है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दैट विल लीड टू external factors like government to intervene
and or the supreme courts to intervene and stop the execution of the product till a material amount of time, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन रुक जाए, which results in low cash inflows in the future endeavors. Especially आपका जो reputation in the markets है, they also get less. Any misconduct in safety provisions may result in increase of operating cost of the project, that is cost overruns, time or duration overruns, and rise in employee cost and reduction in capacity of workers due to life risk. कोई भी रिस्क अगर हो जाता है तो क्या हमारा कॉस्ट ओवररन होगा, क्या जिन्हें दिक्कत हुई है, जिनकी लॉस ऑफ लाइफ हुई है, क्या उनकी फैमिली को क्या हमको पैसा देना पड़ेगा? डेफिनेटली हमको पैसा देना पड़ेगा, राइट? तो जो अगला रिस्क आता है, द कंपनी इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू क्लेम्स ड्यू टू डिफेक्ट्स अराइजिंग इन सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम पावर मेक साइड within the warranty period given by the company of almost 18 to 24 months from the date of commissioning. जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि अगर जो हमारे वारंटी पीरियड के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आता है तो डेफिनेटली हमें उसके ऊपर पैसा देना पड़ता है, हमें उसके ऊपर जुर्माना जो है भरना पड़ता है. एक्चुअल और क्लेम डिफेक्ट्स में रिजल्ट इन लाइबिलिटीज, कॉस्ट, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू लॉस ऑफ लाइफ, मुआवजा देना पड़ेगा, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी, एंड लॉस ऑफ प्रोडक्शन. Any liability in excess of insurance cost may result in cost overrun and affect the profit metrics. अब labor related risks. The company is dependent upon large pool of laborers. हमने बात करी ना 18,000 employees for construction of work and execution of projects. Construction work, civil works होते हैं, mechanical works होता है, balance of plant होता है, इसके लिए बहुत सारा labor लगता है. And execution of projects. At the time of DHRP release, company had 2,271 full-time employees और 18,000 जो हमने बात करी, that is a little flawed or vague figure. Actual figures are 31,219 contract laborers. मतलब जो 18,000 पहले यूनिट था वो कहीं ना कहीं दिया गया था, लेकिन अभी जो यूनिट बताया जा रहा है वो that is 31,219 contract laborers. So inability to access adequate contract labor at reasonable cost or the number of laborers will depend on based of nature and execution of work. मतलब क्या कि हमें अगर एक्सेस नहीं मिला टुवर्ड्स एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एट रीजनेबल कॉस्ट, क्या होता है कि लेबर का ना यूनियन होता है. अगर यूनियन लीडर बोलेगा ना कि यार नहीं यार मेरे को इतना प्राइस पे या फिर इतना पर डे लेबर चाहिए, तो वो कंपनी को देना ही पड़ता है. अगर वो आप कंपनी को नहीं देते हो तो डेफिनेटली आपको लेबर नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज ऑल्सो रिस्क, दैट इज हाई लेबर कॉस्ट. सो नो गारंटी कि लेबर सस्ते भाव में मिलेगा ही, और अगर लेबर सस्ते भाव में नहीं मिला और हमारा जो एस्टिमेशन था वो हमने कम रखा है तो डेफिनेटली कॉस्ट ओवररन होगा, हमें मार्जिन्स पे अफेक्ट आएगा. और जहां प्रोजेक्ट्स है वहां मिलेगा, वी नीड टू रिलोकेट आवर वर्कर्स. क्या हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स है क्या वो रिलोकेट होंगे? क्या अगर हमने किसी वर्कर को सिविल वर्क्स के लिए रखा है तो क्या हमारे वर्कर्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगले दिन वो बैलेंस ऑफ प्लांट या फिर मैकेनिकल काम कर पाए? दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. डेट रिलेटेड रिस्क आर indebtedness and restrictions imposed by financial agreements would adversely affect our day-to-day business operations. मतलब क्या कि कंपनी ने किसी से डेट लेने के बाद उससे अग्रीमेंट किया है और वो अग्रीमेंट के अनुसार आप फ्यूचर कोई डेट उठा नहीं सकते, या फिर आपको जो मेजर कैश रिलेटेड एडजस्टमेंट्स या फिर कैश रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, वो लेने से पहले आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि हम ये ले रहे हैं, और उसके बाद आप उनसे कंसल्ट करने के बाद ही ये डिसीजंस लेंगे, इसके बिना नहीं लेंगे. मतलब क्या कंपनी का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में है जिससे कंपनी ने डेट लिया है? डेफिनेटली उनके हाथ में है. एंड वी आर वल्नरेबल टू इकोनॉमिक डाउनटर्न्स. अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो विल बी अलोकेटेड फॉर डेट सर्विस. ये हमने बात करी कि एक हमारा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कैश फ्लो डेट सर्विस में जाएगा. Ability to obtain additional financing at reasonable cost will be a question of ambiguity. मतलब जो एडिशनल डेट है
उसको क्या हम ले पाते हैं एट रीजनेबल कॉस्ट इज एम्बिग्विटी। इसलिए कंपनी बहुत बार इक्विटी इशू कर लेती है, लेकिन राइजिंग इक्विटी फॉर पब्लिक कम्स विद अ ह्यूज कॉस्ट, फिर वो एफपीओ हो गया। बट राइजिंग इट फॉर इंस्टीट्यूशंस इज समथिंग एट अ लो कॉस्ट, बट दैट टू यू हैव टू गिव अ लिटिल डिस्काउंट और स्टफ लाइक दैट। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और एच एन आई क्लाइंट्स है वो खरीदते हैं यार, क्योंकि उनको अगर सब्सटेंशियल मटेरियल परसेंटेज लेना है कंपनी का, लेकिन मार्केट में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में इतने शेयर्स हैं नहीं फ्लोट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली कंपनी से खरीदेगा, और एच एन आईज खरीदते हैं। सो दैट इज ऑल्सो फ्लक्चुएशंस इन इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ये आपको पता है, अगर फॉर एग्जाम्पल पिछले साल इंटरेस्ट रेट जो है, पहले रेपो रेट से हमारे जो बैंक्स है वो कितने रेपो रेट पे उठाते हैं, उस बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर होता है और कॉर्पोरेट्स का डिक्लेयर होता है। तो जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट निकालेगा या फिर रेपो रेट निकालेगा, उसके बेसिस पे बैंक्स को लोन मिलेगा, और उसके बेसिस पे हमें या फिर कॉर्पोरेट्स को, तो उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे, तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट्स को फ्लक्चुएशंस जो है वो आएंगे। फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स आर सिक्योर बेस्ड ऑन फ्यूचर रिसीवेबल्स, मूवेबल्स एंड इमूवेबल असेट्स। मतलब ये जो असेट्स है या फिर हमने जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करी है फॉर डेट, दैट इज बेस्ड ऑन कि हमारे पास जो फ्यूचर रिसीवेबल्स आएंगे और मूवेबल और इमूवेबल असेट्स आएंगे। क्या इसका मतलब ये कि जैसे ही हमारे फ्यूचर में कैश फ्लोज आने लगेंगे, जब प्रोजेक्ट्स खत्म होंगे या फिर हमारा कोल का एक्सट्रैक्शन शुरू होगा, तो सबसे पहला जो पैसा आएगा उसको अलोकेट किया जाएगा डेट को भरने के लिए। यस। और क्या हमारे इसके लिए हमने मूवेबल और इमूवेबल असेट्स को गिरवी रखा है? हाँ बिल्कुल रखा है। अगर ये नहीं होता है तो हम जो जिससे हमने डेट लिया है वो इसको लिक्विड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फाइनेंशियल अग्रीमेंट्स परमिट टू कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी अपॉन डिफॉल्ट और पेमेंट। क्या बोला कि ये जो अग्रीमेंट है ये परमिट करता है डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करता है डेट को, अगर कंपनी पेमेंट में डिफॉल्ट कर देता है। मतलब क्या कि बैंक्स के हाथ में, अगर आपने बैंक से इशू करे हैं डेट और अगर आप उसको उतना अमाउंट का रिपेमेंट नहीं करते, तो उतने अमाउंट की इक्विटी आपको बैंक को इशू करनी पड़ेगी। मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स आर क्लाइंट विद आर क्लाइंट। कंपनी का धंधा बीटीसी, बीटीजी, ओएनएम और सिविल वर्क है। पब्लिक सेक्टर क्लाइंट है और प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट है। Pre-qualification is the key winning major projects. Focus on developing pre-qualifying status. मतलब क्या है? एंटरिंग कैसे आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं? अगर आप किसी के साथ स्पेसिफिक जॉइंट पार्टनरशिप कर ले, या फिर डेवलपिंग कस्टोरियम पार्टनर्स। कस्टोरियम पार्टनर्स में क्या है कि 2 or more entities come together, bringing their own expertise to achieve a goal. राइट जैसे कि सिंडिकेट हो गया, कस्टोरियम हो गया। मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विथ बिग ईपीसी प्लेयर्स। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी कस्टोरियम पार्टनरशिप्स करती है कस्टोरियम पार्टनर्स के साथ टू विन बिग प्रोजेक्ट्स दैट वर नॉट इन अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनी ड्यू टू कॉस्ट or the company's cost inabilities or different inabilities to comply pre-qualifying compliance। मतलब क्या कि अगर मैं छोटी कंपनी हूँ, मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करूँ, क्या मैं किसी के साथ अगर कस्टोरियम रिलेशनशिप बनाऊं, तो क्या मैं कर सकता हूं? तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूं, बिकॉज देन वी बोथ आर ब्रिंगिंग इन एक्सपर्टीज। आई हैव 1, ही हैज 2, वी बोथ कैन डू 3, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। If the custodian partner fails or shows avoidance or ignorance towards the contract, कि हमारा custodian जो पार्टनर है वो हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं है, हमारे साथ गलत कर रहा है, वो हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट्स को अवॉइड कर रहा है, हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर उतना वर्किंग कैपिटल को नहीं झोंक रहा है, तो इट में लीड टू ओवरबर्डन ऑन द कंपनी। हमारी कंपनी पे ओवरबर्डन होगा टू फिनिश द प्रोजेक्ट्स एट वैलिड टाइम। देयर मे बी अ लिटिगेशन अगेंस्ट द कस्टोरियम पार्टनर and the judgment goes against the partnership. If the judgment goes against the partnership, may adversely affect the working capital and leads to the cost overruns and delay in completion of project।
कि अगर हमारा जो कस्टोरियम है उसके पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच है, प्रोजेक्ट में पैसा नहीं डाल पा रहा, तो क्या हमारे ऊपर दिक्कत आएगी? डेफिनेटली आएगी। क्या हमने अपने नाम से प्रोजेक्ट लिया है? डेफिनेटली लिया है। तो अगर प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा नहीं होता है तो क्या लिटिगेशन हमारी कंपनी के अगेंस्ट आएगा? डेफिनेटली आएगा। कंपनी इज लायबल फॉर एनी स्टैंडर्ड क्वालिटी वर्क, substandard quality work or materials delivered by suppliers और सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंगेज्ड बाय अस। मतलब हमने किसी सप्लायर या सब कॉन्ट्रैक्टर से सीमेंट खरीदा, स्टील खरीदा और उसके बाद वहाँ दिक्कत आई, या फिर हमें हमारे सप्लायर ने सब स्टैंडर्ड वस्तु दी, तो उसकी जांच करने की जो काम था, उसकी जो जांच करने की जिम्मेदारी थी हमारी थी, डेफिनेटली वो हमारी थी। डिमांड फॉर सर्विसेज इज सोलली डिपेंडेंट अपॉन केपेक्स इन्वेस्टमेंट्स, पावर सेक्टर टू एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाइंग ऑपरेशंस। इकोनॉमी का डाउन टर्न आएगा तो एक्सपांशन का स्लो डाउन होगा और हमारा डिमांड का ड्रॉप होगा। आवर ऑपरेशंस एक्सपोजेस अस टू रिस्क ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। हम ओवरसीज में भी काम करते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी लेते हैं। एंड दीज वेर सम risks of the company that we are talking about, that is Power Mech Projects Limited. And this was all for today. Till that, stay tuned.